So let us start today's class. So next topic we have length of tangent vector. Length of the tangent vector. And angle. Two things we will see. Angle between the tangent vectors. So in the previous lectures, you have seen that if we have any surface, let's suppose sigma is the notation I am using for the surfaces, and we are using two parameters, u1, u2. Suppose this is a surface. We are surface. So tangent vector we can denote by some ai, ri. I was using the tangent vector as ri. Ri was dr, so tangent vector dr. R1 du1 plus R2 du2. Suppose I am taking A, B, any tangent vector. A tangent vector. Suppose this is A is any tangent vector at some point P naught. U1, U2. Tangent vector will be what? You have some surface. So here along some curve you will be having this. Suppose it's a point P naught. So I can have a tangent vector A. It is your surface sigma. So a tangent vector to this surface sigma. So where it will be lying? It will be lying in the tangent plane. Is over. It will lie in the tangent plane. You have some tangent plane here. So this vector will be lying in the tangent plane. यहाँ पे जितने भी हम vectors ले लेंगे along this curve, so the tangent vectors will lie along this tangent plane. Lies in the tangent plane. At that point, उस point से पास होता हुआ जो tangent plane होगा. That means what? So that means A can be written as vector A को मैं क्या लिख सकता हूँ? As a linear combination of some A1 R1 plus A2 R2. लिख सकते हैं? Or you can say AI RI. I is 1 to 2. Because we saw that every tangent plane can be written as a linear combination of R1 R2. So we have seen that Kirchhoff tangent plane was R minus R dot R1 cross R2 is equal to 0. ये तो थी tangent plane क्वेश्चन निकाली थी. So R1 R2 lies in the tangent plane. So it means I can write any tangent vector as a linear combination of R1 R2 because these R1 R2 they are generating the tangent plane. So any vector A can be written as a linear combination of R1 R2. R1 means del R over del U1. Del R over del U1. And R2 is del R over del U2. Is it clear? Where AI, they are some components. Where these AI, they are the components. They are the components of tangent vector A. Of the tangent vector A. इसके components हैं. बताइए भाई. This is clear? Can I write any vector like this? Any tangent vector? है ना? R1, R2. Now I want to find length. So if I am taking square, now
mod of a square. That means you have to find what is the mod of this. So mod of a square, you know, I can write a dot a. Can I write it? Okay. And what is a dot a? A dot a means a is the vector, so I can write ai ri dot aj rj. ऐसे लिख सकता हूँ मैं, where ij's both are running 1 to 2, or this can be written as ai dot aj ri dot rj. And you know what is this ri dot rj? ये कितना है? ri dot rj क्या था in first fundamental form? क्यों भाई? 0। तो अभी तुम 0 ही रहोगे लग रहा है, 0 ही मिलेगा तुम्हें इसकी बात। चलो ri dot rj को नोटेशन क्या कहते हैं? GIJ सर। हैं? GIJ सर। GIJ भाई, ये तो GIJ है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म बताया था आप लोगों को। यस सर। हाँ, so this I can write GIJ, so it will be what? GIJ ai dot aj, ये लिख सकता हूँ मैं, GIJ is ri dot rj. Okay, so it means we got mod of a square is this. So it means mod a is what? If you want to find mod a, it's under root. So mod a will be what? Under root GIJ ai dot aj. ना ये निकल आएगा. So it is mod length of this. Is it clear? So if you have some surface, so Gij you can find, Gij निकाल सकते by this r1 dot g12 g11 g22 and ai dot aj, they are the components of the tangent vector. So it will give you the length of the tangent vector, any tangent vector. Now if you want to find angle between two vectors, for the angle, you know, angle means I have to find a dot b, क्योंकि एंगल का फॉर्मूला कहाँ था? a dot b is mod a mod b cos theta, है ना? So I need a dot b. So if we have two tangent vectors, that a is ai ri and b is some bj rj, b two tangent vectors. Then so if you have two tangent vectors like this, suppose it is your a and it is your b, so I want to find the angle formula. Suppose phi is the angle. So you know a dot b is how much? A dot b will be ai dot ri and bj dot rj. Because now I know first fundamental form, so I want to drive every formula in terms of first fundamental form, in terms of components of coefficients of this first fundamental form. क्योंकि अगर आपके surface है तो you can find your Gij. So I am driving the formulas in terms of these Gij's. So now this, for angle I can write this, and again it can be written as ai dot bj and ri dot rj. ri dot rj. So it will be Gij ai bj. Okay, so if phi is the angle, then cos phi will be how much? A dot b upon, this is the formula. So a dot b is Gij ai dot bj upon mod a. So mod a is under root Gij ai aj and Gij pi dot bj.
ij is 1 to 2. So it is the angle formula between two tangent vectors. Okay, you can open this by putting ij11 1 2, so it will giving you the complete formula. बताइए. Now I can write in particular, suppose two curves I am considering, because you want to find angle between two tangent vectors. So consider two curves of class C1 class के on the surface as, because if you want to find angle, so they will be along some curve, है ना. किसी कर्व के along ये टेंजेंट वेक्टर होगा, किसी कर्व के along ये वाला टेंजेंट वेक्टर होगा b, ये तो होगा. So if you have some surface, suppose it is some surface sigma and two curves are there at some point. Suppose one curve is this, it is suppose C1, and one curve is another curve I am taking. Suppose different curve I am taking. This is some different second curve, it is suppose C2. So they are intersecting at some point P0, suppose. So here it is a point P0. So what will happen? One tangent vector will be this, and one tangent vector will be this. It's over. Okay. So curve, how you can denote the curve? Suppose C1 curve is what? So C1 curve को I will denoting in terms of T. So U1 I can write some phi 1t, and U2 is some phi 2t. It is some curve C1, and that C2 curve on the surface you can write U1 is some suppose psi 1t function of t. U1 से टाउ ले लो इसको, बोल के यहाँ इसे अगर मैं t लिया से कुछ टाउ ले लो, कुछ और पैरामीटर ले लिया मैं टाउ, and U2 is some psi 2 tau. ये हमने कर्व ले लिए. इट इज योर कर्व C1, इट इज योर कर्व C2 ऑन द सरफेस. ठीक है. पैरामीटर्स आई एम टेकिंग फॉर दिस, सपोज t, इट इज टाउ. विद पैरामीटर्स हैं, आप t भी रख सकते हैं, दोनों कोई वैसा नहीं. So I am taking this. Suppose these two curves intersecting at the point P0. They are intersecting at the point P0. So what I am doing now, you have got the formula in terms of tangent vectors. ये formula आ गया. But now suppose if you have two curves on the surface, तो आपको जो टेंजेंट वेक्टर्स के बीच में एंगल का फॉर्मूला निकालना है, उसमें हाउ आई विल यूज द इक्वेशन ऑफ द कर्व्स टू फाइंडिंग दिस. अगर टेंजेंट वेक्टर आपको गिवन है ऑलरेडी, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि सम टेंजेंट वेक्टर्स आर गिवन टू यू ए एंड बी. अगर कोई गिवन है, यू कैन अप्लाई डायरेक्ट दिस फॉर्मूला. बट इफ टू कर्व्स आर गिवन, तो क्या होगा? फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द टेंजेंट वेक्टर ऑन द कर्व. ये जो टेंजेंट वेक्टर्स हैं, फिर हम ये फॉर्मूला को लगाएंगे. तो अगर कर्व्स गिवन है आपको ऑन द सरफेस C1 C2 जिनकी इक्वेशन ये है, तो आई विल फाइंड द टेंजेंट वेक्टर्स ऑफ द कर्व, देन आई विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. इज इट क्लियर? क्यों भाई? मुस्तबा जी सर. अगर आपको टेंजेंट वेक्टर्स गिवन है ए और बी, तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला हो जाएगा जो मैंने बताया है ना. लेकिन अगर टेंजेंट सर. वेक्टर नहीं गिवन हो आपको, सपोज सरफेस के ऊपर टू कर्व्स गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट टेंजेंट वेक्टर वेक्टर निकालना पड़ेंगे. अलोंग द कर्व, फिर इस फॉर्मूले को लगाएंगे. तो यहाँ पर आपके पास सपोज सरफेस पे टू कर्व्स गिवन है C1 C2 व्हिच आर इंटरसेक्टिंग एट सम फाई एंगल फाई. तो कर्व इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि देयर टेंजेंट वेक्टर्स आर इंटरसेक्टिंग एट फाई. कर्व की इक्वेशन सरफेस पे क्या होगी? हम ये लिखते हैं
u1 इज phi1t, u2 इज phi2t, क्योंकि सरफेस पे कर्व है ना। दूसरे कर्व पे हमने सब phi1 टाउ phi2 टाउ लिख दिया, कुछ फंक्शन ऑफ टाउ होगा ये। यस सर। हाँ चलो, सो दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट पी नॉट। किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तभी तो एंगल बनेगा। तो लेट अस सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट पी नॉट विद कोऑर्डिनेट्स। तो पी नॉट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, हमने मान लिया पी नॉट के कोऑर्डिनेट्स यू नॉट है, तो आपके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, यू नॉट आई अगर मैं लिख दूंगा तो ये क्या होंगे, फाई आई टी नॉट इज इक्वल टू फाई आई टाउ नॉट, क्योंकि एट द सेम पॉइंट इनके जो पोजिशनल वेक्टर होंगे वो क्या होंगे, सेम। जो सेम। फाई आई टी नॉट होगा वही फाई आई टाउ नॉट होगा, है ना। आई आपका वही है 1 to 2, तो ये यू नॉट 1 होगा, फाई 1 टी नॉट फाई 1 टी नॉट, यू नॉट 2 विल बी फाई 2 टी नॉट फाई 2 टी नॉट, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के पी नॉट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, यू नॉट 1 यू नॉट 2, है ना, पी नॉट के। तो हमने ये वो फाई के टर्म में पोजिशन वेक्टर ऐसे लिख दिया। नाउ लेट dui and delta ui, suppose d denote the differentials along the two curves. That means differentials मतलब क्या हुआ कि dui is what, d phi I over dt into dt, and delta ui is d of psi I d tau into d tau। ये एक क्वेश्चन, बट डिफरेंशियल यही तो होता है। df जो बताया था, df क्या था, अब कोई फंक्शन f है तो f1 dx प्लस f2 dy तो है ना, अगर आपका फंक्शन xy का है तो यहाँ पर u1 u2 का फंक्शन है, तो आई कैन राइट डिफरेंशियल इज व्हाट, dui इज व्हाट, del phi over del phi 1 over dt into dt प्लस del phi 2 over dt into dt, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है कि u इज अ फंक्शन ऑफ, हमने फाई टी नॉट मान लिया ना, फाई 1 फाई 2, हमने क्या लिखा हुआ है, u1 u2 का फंक्शन है ये, u1 u2 u1 u2 है, u1 u2, और ये p के फंक्शन है। तो एंड डिफरेंशियल आई कैन राइट इन दिस वे। सो देन द वेक्टर, अब टेंजेंट वेक्टर मैंने क्या बताया था आपको, dr इज द टेंजेंट वेक्टर, अगर याद हो, भूल गए है ना, dr इज द टेंजेंट वेक्टर along the curve, तो dr एंड दूसरे कर्व के लिए अगर मैं डेल्टा आर से डिनोट कर दूं, सपोज सम ये आर आई डेल्टा यू आई, these are the tangent vectors, these are the tangents at p naught to the two curves, है ना। और अगर टेंजेंट के कर्व्स के टेंजेंट है तो सरफेस के भी होंगे, एंड हैंड टेंजेंट टू द सरफेस। तो ये याद है, जब हमने जब फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था यूनिट 2 का सरफेसेस में, वहां पर आपको बताया था कि अगर कोई सरफेस की फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म जहाँ स्टार्ट की थी अभी प्रीवियस लेक्चर में, कि अगर आपके पास dr इज अ टेंजेंट वेक्टर, है ना, ऑफ द सरफेस, तो यहाँ पे dr अगर आपके पास कर्व है तो dr अलोंग द कर्व हो गया फर्स्ट कर्व, डेल्टा आर अलोंग द सेकंड कर्व, ये टेंजेंट वेक्टर्स होते हैं, हमने प्रूफ किया था उसमें। So these will be the tangent vector at a point p naught, है ना, to the surface at p naught।
so the angle phi between them is given by cos phi is equal to, तो क्या फॉर्मूला था, ai डॉट ए, जब ai का मतलब है dr, ये जो हमने ए बी वेक्टर लिए थे, अब a इज द वेक्टर dr, b इज द वेक्टर डेल्टा, क्योंकि ये टेंजेंट वेक्टर्स आ गए, तो यहाँ पे हमने क्या किया, हियर वी हैव चेंज दिस, ना, वी हैव यूज्ड द इक्वेशन ऑफ द कर्व टू फाइंड द टेंजेंट वेक्टर, तो टेंजेंट वेक्टर आपका ये आ जाएगा dr डेल्टा r, तो cos phi विल बी व्हाट, dr डॉट डेल्टा r अपॉन mod of dr mod of delta r, right? It is वही जो a dot b mod a mod b लिखा था, और इस दिस आई कैन राइट, तो cos इसे लिख दे रहे हैं, तो cos phi is equal to dr dot delta r over mod of dr mod of delta r, और this is what, this is your gij, अब dr is how much, अब इसकी डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो ri डॉट rj तो आपका हो जाएगा gij, है ना, इसको j लिख लो, ri को j लिख लो आप, तो ri डॉट rj and dui duj, this will be dui delta uj upon under root gij dui duj, and delta r is gij delta ui delta uj ij is equal to 1 2, so it is the formula, और अगर इसे आप एक्सपेंड कर दें तो यू कैन राइट cos ऑफ phi, इसे एक्सपेंड कर दो, 1 1 वैल्यू पुट कर दें, है ना, तो क्या आएगी वैल्यू, g11 प्लस g12, देखो g12 du1 डेल्टा u2, तो g12 आई कैन टेक आउटसाइड बिकॉज g12 इज इक्वल टू g21, तो du1 डेल्टा u2 प्लस du2 डेल्टा u1 प्लस g22 du2 डेल्टा u, तो यहाँ पे मैं du1 होल स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा u1 इज अ डिफरेंट पैरामीटर, du1 इज अ डिफरेंट पैरामीटर, है ना, डिफरेंट डिफरेंशियल है ये, तो स्क्वायर नहीं है, इसे हम ऐसे लिखेंगे, दिस इज अलोंग कर्व C1, दिस इज अलोंग कर्व C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट जी, यहाँ पे अब आप जब ओपन करेंगे g11 du1 du2, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, g11 du1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस g12 du1 du2 प्लस g22 du2 होल स्क्वायर एंड g11 del u1 square plus twice g12 del u1 del u2 plus g22 del u2 whole square. So it is a formula between the angle of two tangent vectors along some curve. Okay. Yes, sir. ये समझ में आया सब मैंने क्या किया कि why I have done all these things, क्यों किया ये सब बताइए, 31 में से 27 स्टूडेंट रहेगा, 4 तो बीच में भाग गए छोड़ के, बताओ एनीवन कैन एक्सप्लेन, एंगल निकालने के लिए। हाँ भाई तकनीक साहब, तुम्हारी आवाज बहुत देर बाद आई, कहाँ थे तुम? सर मैं लिख रहा था, है मैं सर लिख रहा था, जो आप लिख रहे थे उसको लिख रहा था। लिखने में यार, लिखने के चक्कर मत पड़ो, लिखने में समझ में नहीं आता है, तुम्हारे पास मैं शेयर कर देता हूँ, अपना पॉज करके लिख लिया करो। नहीं समझ के लिख रहा है ना। नहीं, जब मैं बोल रहा तो कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ समझेगा। तो ये हमने जो फाइंड किया है, ये जो हमने फाइंड किया है, एक्चुअली क्या करा है, पहले तो वी ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द
टू टेंजेंट वेक्टर्स, अगर ए बी आपको टेंजेंट वेक्टर्स गिवन है तो cos phi is this, है ना. Now suppose two curves are giving on the surface and you want to find the angle between two curves. So what I will do, the curves equation will be given you in this form. कुछ ऐसे दे रखी होगी, है ना. इसको हम क्या करेंगे, इसका टेंजेंट वेक्टर निकालेंगे पहले कर्व का. तो किसी कर्व का टेंजेंट वेक्टर क्या होता है, जी आर. हमने चेक उस दिन निकाला था, जी आर इज द टेंजेंट वेक्टर ऑफ एनी कर्व. तो जी आर निकाला, सेकंड कर्व का हमने डेल्टा डिनोट कर दिया. जब टेंजेंट निकल आया फिर फॉर्मूला पुट कर दिया, और फॉर्मूले में हमने वैल्यू लगा दी जी1, क्योंकि अगर आपके पास सरफेस की इक्वेशन गिवन है तो आप उसकी जीआई आराम से निकाल सकते हैं. ओके, so it will give you the angle between two curves on the surface. अब यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन है, इजी ऑब्जर्वेशन. सपोज आई वांट टू फाइंड एंगल बिटवीन पैरामीट्रिक कर्व, इससे हम निकाल सकते हैं एंगल बिटवीन पैरामीट्रिक कर्व. ओके, अब कौन बताएगा व्हाट इज पैरामीट्रिक कर्व? बताया थे कुछ पैरामीट्रिक कर्व क्या होते हैं, बताइए. पैरामीट्रिक कर्व बताया था, u1 कर्व, u2 कर्व. द पैरामीट्रिक कर्व, u1 कर्व मींस constant. When u2 curve is constant. normal curve. हाँ, if you have two parameters u1 u2, तो पैरामीट्रिक कर्व क्या होते हैं? u1 कर्व इज when u2 is constant, u2 कर्व मींस u1 is constant. Constant. Yes, sir. So if you have some u1 is constant, if you have some line here, इसका अगर आप पिक्चर ले यहाँ पर सरफेस के अंदर, है ना. अगर ये क्या है आपका, ये अगर u आपका xy है, सपोज इट इज ux1 u1 u2 कर दूं xy को मैं, तो इट इज व्हाट, योर u2 इज c. इसकी इक्वेशन ये तो है सब कांस्टेंट. इसकी इमेज आपकी सपोज यहाँ से कहीं आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज योर u1 कर्व ऑन द सरफेस. So suppose if we take two curves, two parametric curves u1, in general I can write, if we take two curves ui is equal to some phi it, ना ये तो हमने कर्व दिए हैं, and uj some psi j tau. ओके, आई जे इज 1 to 2. तो u1 ये वही आपका u1, ये जो अभी लिखा था u1 इज phi1 t phi 2 t. तो एक कर्व की इक्वेशन होती है सरफेस पे, इट इज रिप्रेजेंटिंग वन कर्व, u1 इज phi1 t, u2 इज phi 2 t. ये क्या है, u1 इज phi1 t, u2 इज some phi 2 t. ये टू कर्व्स हैं. तो द पैरामीट्रिक कर्व, देन द पैरामीट्रिक कर्व, तो पैरामीट्रिक कर्व को अगर मैं मान लो कह दूं u1 कर्व, तो u1 कर्व मींस u2 कांस्टेंट, है ना, एंड u2 कर्व का मतलब होगा u1 कांस्टेंट. तब आपके पास सरफेस पे इस तरीके से सपोज यू हैव टू कर्व, इट इज सपोज योर u1 कर्व एंड इट इज योर u2 कर्व. ओके, तो ये अगर टू कर्व्स हैं तो इनके बीच में क्या एंगल, आई वांट टू फाइंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीस टू कर्व्स. तो एंगल बिटवीन दीस टू कर्व्स का मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन द टेंजेंट, है ना, Tangents. हाँ. So if you want to find the angle between u1 u2 curve, so you know if you have u1 curve, so along u1 curve we know du2 is how much, du2 0, है ना, क्योंकि u2 कांस्टेंट है. और along u2 कर्व del u1 is 0, Del u1. क्योंकि हम कर्व को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे आपने देखा,
scalar representing the curve by du and delta u. u1 कर्व का जो डिफरेंशियल था वो du से रिप्रेजेंट करा आपने और दूसरे कर्व पर u2 जो था वो del u से। यहाँ पर आपके u1 u2 कर्व जो है बेसिकली क्या है कि u1 कर्व में आपका u2 हमेशा कांस्टेंट है, तो u1 कर्व के अलोंग du2 हमेशा 0 होगा और u2 कर्व के अलोंग u1 हमेशा कांस्टेंट है, तो u2 कर्व के अलोंग del u1 विल बी ऑलवेज 0। तो व्हेन आई एम पुटिंग इट दिस हियर, इसे इक्वेशन 1 करते हैं अगर, है ना, इट इज अ फार्मूला। so 1 implies that, so equation 1 implies that cos phi is equal to, अब जरा पुट करो यहाँ पे देखो आपका कितना है du, what I am taking du to 0, तो जब du to 0 लिया आपने, देखिए जरा इधर du to 0, ओके, तो ये दोनों टर्म्स ये 0 हो गया, क्या बचा भाई du to 0 है और del u1 0 है, तो del u1 0 है तो ये नहीं du1 del u2 del u1, हाँ, तो del u1 से तो ये 0 हो गया और du1 से ये 0 हो गया। ये तो फॉर्मूला दिखा था हमने, बोलिए भाई, व्हाट यू हैव अलोंग दिस कर्व du2 0, you have this du2 0 del u1 0, पुट करो इस फॉर्मूले में, क्या होगा न्यूमरेटर में क्या टर्म बचेगा खाली, बताइए, ये 0 हो जाएगा और क्योंकि del u1 0 है और ये 0 हो जाएगा du2 0 है, और कौन सा टर्म 0 होगा, ये वाला, क्योंकि del u1 is 0। तो what you have now in numerator g12 du1 del u2, ओके, अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए जरा du2 0 है तो दिस इज 0, दिस इज 0, क्या बचा g11 du1 स्क्वायर अंडर रूट g11 du1 स्क्वायर। Similarly you have delta u1 0, तो क्या बचा delta u1 0, this term 0, this term 0, you have g22 delta u2 whole square, okay, whole square रूट साइड बाहर आ जाएगा, तो what you have now g12 upon under root g11 under root g22, okay, so this is the formula for angle between two parametric curves। so angle between two parametric curves, so only you have to find g12 g11 g22, ये आपको एंगल दे देगा। इज इट क्लियर, ये स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा, कैंसिल कर देगा टर्म्स को। so it is the formula particularly for angle between two parametric curves। so this implies that from this two parametric curves are orthogonal if and only if, कब होंगे, इससे कुछ निकल सकते हैं ऑब्जर्वेशन, बोलो भाई, ऑर्थोगोनल होंगे तो क्या होगा, फाई 90 डिग्री, फाई 90 का मतलब क्या होगा, cos 90 is how much, 0, तो कब हो गया टू पैरामीट्रिक का ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ g12 is how much, g12 0 यार, है ये निकले है नहीं ऑब्जर्वेशन यहाँ से। तो अगर आपको कोई सरफेस गिवन है और आपको उस सरफेस के ऊपर शो करना है कि शो दैट ऑन दिस सम सरफेस पैरामीट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, तो ओनली यू हैव टू फाइंड g12 ऑफ द सरफेस। अगर वो 0 आ गया इट मींस द पैरामीट्रिक कर्व्स ऑन द सरफेस विल बी ऑर्थोगोनल। कोई सरफेस गिवन है आपको, मान लो कोई भी सरफेस इक्वेशन दे रखी है, एनी सरफेस, एंड यू हैव टू शो दैट the parametric curves are orthogonal to each other। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको सिर्फ ये शो करना होगा
कि उनका G12 क्या है, 0 है। और G12 की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालोगे G12, बताओ। फिर भूल गए क्या यार, R1 क्रॉस R2 R1 सर। into R2. R1 डॉट R2 है ये, सर। अगर आपने निकाल, बस समझ में आई बात। तो अगर आपको याद है आपने स्फीयर के लिए करा था, स्फीयर की फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म करी थी यहाँ पर, वहां पर आपका G12 0 आया था, याद है, नहीं याद। स्फीयर की हमने इक्वेशन लिखी थी, a cos थीटा a cos फाई a cos थीटा sin फाई z इज इक्वल टू a sin थीटा। स्फीयर की इक्वेशन क्या थी, r इज इक्वल टू a cos थीटा cos फाई a cos थीटा sin phi and a sin theta. It was the equation of a sphere, spherical coordinate, है ना। a cos theta cos phi, a cos theta sin phi sin। इसका आपने जब G12 निकाला था, आप दोबारा निकाल सकते हो, निकाल। अब यहाँ पर U1 कितना है, U1 इज थीटा एंड U2 इज phi। तो G12 जब आप निकालेंगे, G12 का मतलब r थीटा डॉट r phi। हमने लास्ट प्रॉब्लम करी हुई है, आपकी पिछली स्लाइड में पढ़ा होगा। तो ये 0 आ रहा था, f जिसको अपने f भी बोलते हैं, f इज इक्वल टू G12। G12 0 आने का मतलब क्या हुआ कि इफ यू टेक एनी स्फीयर, कोई स्फीयर अगर आप ले, उस पे इफ यू आर टेकिंग 2 पैरामीट्रिक कर्व, तो क्या होंगे वो हमेशा आपस में ऑर्थोगोनल आएंगे। Orthogonal. ठीक है, इसको विजुलाइज भी कर सकते हो आप। ये एक बात कहनी थी आपसे। तो ये पैरामीट्रिक कर्व्स को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट लाइंस भी बोल देते हैं। पैरामीट्रिक कर्व्स या कोऑर्डिनेट लाइंस भी बोलते हैं इसको, कोऑर्डिनेट लाइंस। क्लास एंड होने वाली है, आई विल कंटिन्यू टुमारो, अगर क्लास एंड हो जाती है तो। ठीक है, इन्हें हम कोऑर्डिनेट लाइंस भी बोलते हैं। So if the coordinate lines are orthogonal at every point, we say that the curvilinear coordinates are orthogonal. ठीक है, so the first fundamental form, if your G12 is 0, so your first fundamental form